ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਰੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਗਗਨ ਦਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸਨੈ ਕਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਤੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਾਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜਗਤ ਜੋਤ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ। ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। जो आप संगत ने गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सर्वर किया, वो तभी परवान है जब आपने गुरु के उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लिया। ये बड़ी बड़ी गल है कि गुरु की गोद विच जुड़ बैठना
गुरु दे पावन बचनां नूं अपने हिरदे विच वसाउणा ਇਹ गुरु की कृपा तो बिना नहीं हो सकता। दास जिस धरती तो आया है उस धरती का जरा जरा ये उपदेश दे रहा है, ये गल नूं पुकार रहा है कि भाई गुरु वाले बन जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित हो जाओ, गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा को अपने जीवन में लागू कर लो। मुझे हुक्म हुआ था कि भाई साहिब जी श्री अनंदपुर साहिब जी का इतिहास, वो नगरी कैसे होंद में आई, उस नगरी की क्या विशेषताएं हैं, उस नगरी की हिस्ट्री, इतिहास क्या है, हमारी संगत को जरूर आप बता करके जाना। मैं इतिहास उत्थों शुरू करन लगे हैं जदों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी प्रचार दौरे तो आ करके अपने परिवार के पास कीरतपुर साहिब में आके रुके। गुरु तेग बहादुर जी के पांच भाई थे, एक बहन थी। गुरु तेग बहादुर जी जब कीरतपुर साहिब में आए 1665 ईस्वी की जो बात मैं कर रहा हूं, गुरु तेग बहादुर जी के पास एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी एक पुरोहित लेके आता है। उसमें क्या लिखा हुआ है? इतिहास में जिक्र आता है कि उस चिट्ठी में जो बातें लिखी हुई थी, ऐ गुरु तेग बहादुर जी, आपको शत शत नमन हो। कहलूर के राजे दीप चंद की 17वीं है। आपको निवेदन है कि आप उनकी 17वीं में पधारे। तो गुरु तेग बहादुर जी के पास जो सिख थे, उन सिखों ने कहा कि गुरु जी, राजे की रानी का सुनेहा आया है। बिलासपुर का जो राजा था दीपचंद, उसकी रानी का नाम था चंपा, रानी चंपा। 17वीं के दिन जब सारा प्रोग्राम समाप्त हो गया, तो गुरु तेग बहादुर जी वहां से जब जाने लगे तो रानी चंपा ने माता नानकी जी के पांव पकड़ लिए कि माता जी, मैंने सुना कि गुरु तेग बहादुर जी एक नगर बसाने के लिए भूमि देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਭੱਟ ਵਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਜਤ ਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 5 गांव की धरती मूल्य खरीदी थी। एक था माखोवाल, दूसरा था माटोवाल, तीसरा था चक, सोहोटा और लोधीपुर। इन 5 गांव की जमीन खरीद कर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੜਵਾਈ, ਭਾਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂव रखी। वो दिन आ रहे हैं 19 जून, जब समुच्चा खालसा पंथ श्री अनंदपुर साहिब का स्थापना दिवस मनाता है। 19 जून 1665 ईस्वी ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਖੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਖੋਵਾਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਤਾ नानकी रखा। गुरु तेग बहादुर की माता का नाम माता नानकी था। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपनी वाणी में बचित्र नाटक में जिक्र करते हैं, युद्ध जिते आन टिके न तिनपुर गांव, कहलूर में बांध्यो आन आनंदपुर गांव। आनंदपुर शहर की स्थापना की ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਰਡ ਹੈ। हर एक शब्द का विपरीत शब्द है। सुख का दुख है, खुशी का गमी है। केवल एक शब्द ऐसा जिसका ऑपोजिट वर्ड ही नहीं है, वो कोई और नहीं, उस शब्द का नाम है आनंद। आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड ही नहीं है संसार। ये प्रतीक है इस बात का। संसार के अंदर खुशी आएगी तो गमी भी आएगी, संसार के अंदर जन्म हुआ है तो मौत भी होगी, पर जिसके हृदय में गुरु द्वारा आनंद की बख्शिश हो गई, फिर उसके हृदय में कोई और
विषय विकार का स्थान नहीं रह जाता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। (1675) 1675 औरंगजेब ने एक हुक्म लागू किया हिंदुस्तान में, जितने भी हिंदुस्तान के ब्राह्मण हैं उन सभी को या तो मुसलमान बनाया जाए, अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो उनका कत्ल कर दिया जाए। सबसे पहले टारगेट किया गया कश्मीर को। उसके 3 मुख्य कारण थे। कश्मीर में ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा थी। वहां के ब्राह्मण जो थे वो संस्कृति भाषा के साथ साथ अन्य और भाषाओं के भी ज्ञाता थे। उनका दबदबा पूरे मुल्क में था ब्राह्मणों का। तो इसकी ड्यूटी उसने शेर अफगान खां की लगाई, वहां का गवर्नर नियुक्त किया। हिंदुओं के मंदिर ढा दिए, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा। अब कोई पुकार सुनने वाला नहीं रहा। इतिहासकार जिक्र करते हैं कि अमरनाथ मंदिर में इन ब्राह्मणों ने जाके शरण दिया, वहां पे पूजा कर रहे हैं। शेर अफगान खान से 6 महीने का समय मांगा। तो अमीर भंडार ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि अमरनाथ या मंदिर में जब वो भक्ति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे शिव जी के आगे, तो वहां से उनको एक आवाज सुनाई देती है कि आपकी धर्म की रक्षा करने के लिए परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु का साक्षात स्वरूप श्री अनंतपुर साहिब में विद्यमान है। आप उनकी शरण में चले जाइए। कृपा राम पंडित, उसकी अगुवाई में श्री अनंतपुर साहिब में 500 ब्राह्मणों का जत्था आता है। केवल एक बार नहीं आया, 2 बार आया इतिहास में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गुरु तेग बहादुर जी के पास जाकर के विनती करने लगे कि हे सदगुरु, हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। कोई भी हमारी बात पकड़ने वाला नहीं। उस समय गुरु गोविंद राय जी केवल 9 साल की आयु में थे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उम्र केवल 9 साल की थी। जदों कश्मीरी पंडित अनंतपुर साहब आए, आके सतगुरु नूं बेनती की, सतगुरु कृपा करके साडा धर्म बचा लो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिक्र करते हैं, तिलक जन्यू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू में साका, साधन हेत इतनी जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया।
गुरु जी ने उस समय ये आख्या कि पंडितो तुसी गुरु नानक दी शरण विच आए। जे पहले जामे विच पहली जोत विच गुरु नानक दे रूप विच असी धक्के नाल जनेऊ नहीं पहनण दिता ते धक्के नाल थोड़ा जनेऊ भी उतरन नहीं दिया। थोड़े धर्म की रखिया करांगे पर थोड़े धर्म की रखिया करन दे वास्ते एक महापुरख दे बलिदान की लोड़ है, ओदे सीस की लोड़ है। ते संगत जी विचारा चल रही ने। जुलाई 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर जी कोल कश्मीर दे पंडित आए। 3 महीने तक विचारा चलदियां रही। ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने आकर के पूछया, पिता जी की गल? सारे गमगीन बैठे ने, डूंगी विचार दे विच बैठे ने, की गल हो गई? ते आखण लगे, बेटा जी इन्हां दा धर्म खतरे विच है। किसे महान पुरख दे बलिदान की जरूरत है। ते उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आखण लगे, पिता जी थोड़े तो बड़ा महापुरख इस धरती पे कौन हो सकता? आपसे बड़ा संत, आपसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, आपसे बड़ा महापुरुष इस धरती पे कौन है? उसे वक्त अपने सीने नाल ला लिया कि पुत्रा मैनू हल मिल गया, असी अपना सीस देन जाना। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी की परख भी हुई है। आखन लगे, बेटा तेरी मां विधवा हो जाएगी। उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का उत्तर सी, पिता जी इस देश की लाखों माओं को विधवा बनाने से तो अच्छा मेरी मां विधवा हो जाए। अगर उनका सुहाग बचता है, उनका सुहाग बच जाता है, तो ये सौदा फिर महंगा नहीं। बेटा तू अनाथ हो जाएगा, तेरे सिर तो प्यो की शान उठ जानी है। ते उस समय बाल उम्र दे गुरु गोबिंद राय आखण लगे, पिता जी जे इस धरती दे लखां बच्चियां दे प्यो दे तो सिर दा साया उठ गया, वो नुकसान ज्यादा है। मेरे सिर तो उठ जाए कोई गल नहीं, सौदा महंगा नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में जाकर अपनी शहादत देते हैं। गुरु गोबिंद सिंह को गुरता का तिलक लगाया जाता है। ये स्थान जब आप श्री अनंतपुर साहिब की धरती पे जाओगे, जहां पे कश्मीरी पंडित फरियाद लेके आए, वहां पे गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है, गुरुद्वारा थड़ा साहिब। पूरे गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा गुरु के महल भोला साहिब, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी का घर भी वही था, घर भी वही था। जहां पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज को गुरता का तिलक दिया गया है, वो भी गुरु के महल के अंदर ही स्थित है। उसको गुरुद्वारा दमदमा साहिब बोलते हैं। इसी गुरुद्वारे में, इसी स्थान में गुरुद्वारा गुरु के महल के अंदर ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 3 छोटे साहिबजादों का जन्म हुआ। बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी।
एक बार तो कश्मीरी पंडित 1675 में श्री अनंदपुर साहिब आए। संगत जी फिर कश्मीर दे विच 16 अप्रैल 1995 में वहां पर फिर से दंगे हुए। फिर 500 ब्राह्मणों का जथा श्री अनंदपुर साहिब में आया, गुरु तेग बहादुर जी के दर पे थड़ा साहिब में। वो चिट्ठी आज भी मौजूद है जो वो चिट्ठी लेके आए थे गुरु तेग बहादुर जी के पास। उसकी मैं कुछ लाइनें आपसे जरूर साझी करूंगा। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, हे भारतीय संस्कृति के रक्षक, हिंदू धर्म के रक्षक गुरु तेग बहादुर जी, हमारा कश्मीर के ब्राह्मणों का आपको नमस्कार। आपने पहले भी हमारी संस्कृति की रक्षा की थी। हे गुरुदेव, आज फिर से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म खतरे में है। आप कृपा कीजिए, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बचाएं। हम 500 ब्राह्मण देश के कोने कोने से आए हैं। आपने पहले भी हम अनाथों को सहारा दिया था और आप आज भी हमें सहारा दें। जब कभी भी आपको श्री अनंदपुर साहिब जाने का मौका मिले तो जरूर जाके आओ, जरूर इस स्थान को नमस्कार करके आए। जे वो स्थान है जहां से एक संदेश मिलता है कि गुरु की शरण में जो भी आ गया, गुरु धर्म नहीं देखता, गुरु जात नहीं देखता, गुरु रंग नहीं देखता, गुरु नस्ल नहीं देखता, गुरु प्रेम देखता है, गुरु श्रद्धा देखता है। और गुरु तेग बहादुर ने भी श्रद्धा देखी, गुरु तेग बहादुर जी ने भी प्रेम देखा था। श्री अनंदपुर साहिब की धरती पे जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को गुरता का तिलक दिया, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का दिल्ली की चांदनी चौक में शीश का बलिदान हुआ, सतगुरु की शहादत हो गई। भाई जैता जी, जिनको बाबा जीवन सिंह जी कहा जाता है, वो गुरु तेग बहादुर जी का शीश श्री अनंदपुर साहिब लेके आए। अब मैं इसके पीछे की थोड़ी सी वार्ता आपसे शेयर करूंगा। आजकल के बच्चे जो हैं अपने माता पिता का सत्कार नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। माता पिता जिस काम से रोकते हैं उस काम को तो जरूर ही करते हैं। माता पिता का सत्कार नहीं रह गया। संगत जी, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 5 ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ। ਭਾਈ ਉਦੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 6ਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।
गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नमस्कार की, माता गुजरी जी ने नमस्कार की, ते अखीर विच धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपनी मां माता नानकी दे चरणां ते नमस्कार की। अज ते असीं मत्था टेकना भी भुल गए, असीं अपने संस्कारां नूं भुल गए, अपनी सभ्यता नूं भुल गए। गुरु तेग बहादुर जी ने चरणां दे उत्ते माता नानकी जी दे चरणां ते अपना सीस रखिया, मत्था टेकिया ते अपनी मां नूं आखिया, मां जी मेरे ਲਈ कोई हुक्म, पता भी है मैं शहादत दे देनी है, मैं वापस नहीं आना, मेरे लिए कोई हुक्म? माता जी कुछ नहीं बोले। दूसरी बार फिर किया, माता जी मेरे लिए कोई हुक्म? माता जी फिर भी कुछ नहीं बोले। जदों तीसरी बार धन गुरु तेग बहादुर जी ने आखिया, माता जी मेरे लिए कोई हुक्म? धन माता नानकी जी आखन लगे, बेटा मैं फिर तो तेरा मुख देखना चाहूंगी। माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर जी को बोल रहे हैं, मां को भी पता है मेरे बेटे ने वापस नहीं आना, इसकी शहादत होगी, बट फिर भी बोल रही है, बेटा मैं फिर से तेरा मुख देखना चाहती हूं। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਖੜਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਮੁਖ ਤੈ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਗੜ ਲਾਵਾਂ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਗੜ ਲਾਵਾਂ, ना ही वक्त रहना ते ना ही वेल होना, फिर वक्त नहीं मिलना। मां पुत ने सदा लई विछड़ना है, यह भावी दा आखिरी खेल होना, सदा दे लई विछड़ जाना। संगत जी देखो, गुरु तेग बहादुर जी शहादत दे उत्ते जा रहे ने, अपना बलिदान देन वास्ते जा रहे ने, पर नाल ये ड्यूटी वचन भी पा लिया कि मां मेरा आखिरी वार दा मुख भी तेनू फिर देखण नूं मिलेगा। भाई जैता जी सीस लेके आए गुरु तेग बहादुर जी, आखिरी बार फिर माता नानकी जी ने अपने पुੱਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਖਰੀ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी जब शीश का संस्कार हो रहा था, गुरु जी के शीश का संस्कार भी अनंतपुर साहिब में हुआ, वहां पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शीश का संस्कार हो रहा था। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने भाई जैता जी को जो बात पूछी कि भाई जी
जब गुरु पिता जी का शीश धड़ से जुदा कर रहे थे, क्या किसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या कोई सिख दिल्ली में मौजूद नहीं था? भाई जैता जी ने भी नीवी पा ली, आखण लगे सतगुरु सिख ते बहुत सी पर पछाण विच कोई नहीं सी, पहचान में कोई नहीं था। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के बिल्कुल सामने गुरुद्वारा अकाल भुंगा साहिब है। वहां से सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक ऐलान किया। वो ऐलान किया था, जिनकी जात गोत कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाओ। वो वचन भी सतगुरु ने पूरा किया। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सतगुरु ने नाले भी वचन किया, इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद करे हमारी बुराई। भाई जैता जी जो शीश लेके आए थे, उनको अपनी छाती के साथ लगाया और उनको वरदान दिया, उनको वर दिया, उनसे एक वचन किया, रग रेटे गुरु के बेटे, कि आप गुरु के सच्चे पुत्र हो। रग रेटे गुरु के बेटे, रोहो पंथ के संग अमेटे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसी दिन से हुक्मनामे जारी कर दिए कि कोई भी सिख आए, कोई भी श्रद्धालु आए, हमारे लिए बेटा जो है वो वस्त्रों की ना लेके आए, हमारे लिए बेटा घोड़े, शस्त्र, इस तरह की भेंटा लेके आओ। महाराज ने हुक्म जारी किया। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी, क्योंकि अगे समय बड़ा नाजुक आ गया, हालात बड़े नाजुक हो गए ने। सतगुरु जी ने श्री आनंदपुर साहिब की रखिया दे वास्ते, सिखां की शक्ति को मजबूत करने दे वास्ते, बेगैरता नूं गैरत बख्शण दे वास्ते सतगुरु जी ने उस धरती ते शस्त्र विद्या शुरू करवाई। आनंदपुर साहिब की रखिया दे वास्ते 5 किलियां का निर्माण होया। सब तो बड़ा किला आनंदपुर साहिब की धरती ते किला आनंदगढ़ साहिब। इतिहासकार जिक्र करते एक किला एडा बड़ा सी, पहाड़ की चोटी ते सी। इस किले दे विच जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रिहाइश सी, महाराज जी का परिवार रहता सी, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे नाल 2700 घोड़ सवार उसे किले विच रहता सी। 1701 दे विच सतगुरु जी ने इस किले का निर्माण करवाया। 1699 च सतगुरु जी ने विसाखी वाले दिन खालसा पंथ की साजना की। वो विषय जो है रात को असी सरवण करांगे। किला आनंदगढ़ साहिब, इस किले के अंदर जदों भी आप जी जाओ दर्शन करो, एक बौड़ी बनी हुई है पानी की। कभी भाई संतोख सिंह जी आखदे ने इस बौड़ी दे विच छोटियां-छोटियां कोठड़ियां बणियां हुईयां ने, घुम्मण घेरियां बणियां हुईयां ने। जब बंदा एक बार उन्हां दे अंदर चले जाए, वापस बाहर निकलना औखा हो जाता, रास्ता नहीं लगता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस किले विच अपनी रिहाइश की थी। महाराज जी का वो घर था
जब श्री अनंदपुर साहिब को 1704 ईस्वी में गुरु साहिब ने छोड़ा तो किला आनंदगढ़ साहिब से महाराज जी रवाना हुए। दूसरा किला, किला लोहगढ़ साहिब, इसके नाम से इसका पता चल जाता है, लोहा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जितना भी शस्त्र वेपन्स बनते थे इसी किले में बनते थे। इस किले का दरवाजा बड़ा मजबूत बनाया गया। गुरु जी के अनेकों शत्रु थे, गुरु किसी का शत्रु नहीं है, पर बोलते हैं ना, जब झूठ के आगे सच्चाई खड़ी हो जाए तो कितनी झूठ इकट्ठे हो जाते हैं कि सच्चाई को हम हरा दें, बट को हरा नहीं सकते। उस किले को जितन दे वास्ते मुगलिया हुकूमत की, पहाड़ी राजे की, कि वो पहाड़ी राजे ने जिन्हां दे पूर्वजां नूं धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह ने ग्वालियर के किले विचों आजाद करवाया। अज वही दुश्मन बड़ी बैठे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक संदेश पम्मा पुरोहित के, पहाड़ी राजियों का पुरोहित था पम्मा पुरोहित, उसके जरिए जो संदेश भेजा गया कि आप शाही पोशाक पहनना बंद कर दे, तख्त लगाना बंद कर दे, कीर्तन करना बंद कर दे, शिकार खेलना बंद कर दे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, हम स्वतंत्र हैं, हम किसी का हुक्म नहीं मानेंगे, हुक्म केवल अकाल पुरख वाहिगुरु का है। संगत जी, पहाड़ी राजिया ने व्योत बनाई कि किला लोहगढ़ साहिब का दरवाजा तोड़ के उस किले ते कब्जा कर लिया जाए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे सपुत्र गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं असी फेर जिउंदा जां मुर्दा पकड़दा। अजमेर चंद की अगवाई दे विच जी दीप चंद दा मामा अजमेर चंद अगवाई विच पहाड़ी फौजां ने किला लोहगढ़ साहिब ते हमला करन दा सारा प्रोग्राम बनाया। एक हाथी नूं शराब पिलाई गई, ओदे मत्थे दे उत्ते 7 फुलाद दीयां तवियां बजीਆਂ गईयां, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पता लगिया भाई सालो दा पोतरा, ये भाई सालो ये वो शख्सियत है जो गुरु रामदास महाराज जी दे समय विच होए ने। जदों गुरु रामदास जी दे घर लंगरां दी प्रशादे दी बनावट दे लई लक्कड़ दी थोड़ हो गई ना, ते भाई सालो ने घरां विच जाके लकड़ा मंगियां, पाथियां मंगियां ते पाथियां दे बदले उन्हां नूं पुत्रां दी दात दे दित्ती। ते ओ भाई सालो सी ब्रह्म ज्ञानी भाई सालो, ओदा पोतरा भाई दुनी चंद। कहंदे शरीर बड़ा भारी सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जदों सूये ने दस्सिया महाराज जी हाथी नाल हमला करन दी सोच रहे ने, पहाड़ी राजिया ने किले दा दरवाजा तोड़ना है। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते फिर की होया? गुरु घर दा हाथी भाई दुनी चंद दा मुकाबला करेगा।
दुनी चंद डर गया, अपने साथियों के नाल वियोंत बनाई। वियोंत बना करके उन्हें की कीता, रात नूं किले दी कंध तो रस्सी लमका के दौड़न लगे ते रस्सी अध विचकारों टुटी ते अपने भार नाल ओदी लत्त टुट गई। ओदे साथियों ने उन्हें मज्जे ते पाया ते ओदे पिंड रह गए। कहने ना मूसा भजिया मौत तो अगे मौत खड़ी, जदों घर पहुंचिया सप ने उन्हें डंग लिया ते ओदी मौत हो गई। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को आखण लगे, सतगुरु दुनी चंद ते डर के भज गया। उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी आखण लगे, हाथियों का मुकाबला कभी हाथी नहीं किया करते, हाथियों का मुकाबला शेरे जिगर किया करते हैं। ते भाई बचित्र सिंह जी को सतगुरु जी ने थापड़ा दिता ते नाल नागणी बर्षा दिता। एक वर्षा है, उसके आगे जो वेपन लगा हुआ है वो एक जैसे सपनी होती है ना, उस वर्षे का ऐसे फल पड़ा हुआ है सांप की तरह, इसलिए उसको नागनी वर्षा बोला जाता है। वो आज भी तख्त श्री केसगढ़ साहिब में मौजूद है। गुरु गोबिंद सिंह जी से थापड़ा लेकर के आज्ञा पा करके भाई बचित्र सिंह जी आए, एक अरदास की गया, गुरु गोबिंद सिंह शरीर करके मैं हूं मगर बल आपका होगा, ताकत आपकी होगी, शक्ति आपकी होगी। हर एक सिख का, हर एक प्राणी का ये फर्ज भी होना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बोलते हैं कि यह प्राणी, जब तू गुरु नानक के आगे अरदास करके किसी भी कार्य के लिए जाएगा तो तेरा कार्य वो तू नहीं करेगा, वो गुरु नानक आप करेगा। और भाई बचित्र सिंह जी अरदास कर रहे हैं, ऐ गुरु गोबिंद सिंह महाराज, बल शक्ति ताकत आपकी हो। और गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का उस सिख ने किस तरह दे नाल महाराज जी का सिर मार नाल उच्चा किया। जदों हाथी सामने आया, भाई बचित्र सिंह जी ने घोड़े दियां बांगा खिंचियां, घोड़ा दौड़िया, रकाबा विच पैर पा के भाई साहब खड़े होए, सज्जे हाथ दे विच नागणी वर्षा वो फड़ करके हाथी दे मत्थे विच मारिया। 7 तवियां नूं वो वर्षा चीरदा होया हाथी दे मत्थे विच जाके वजिया ते मधानी दे वांगू जैसे छाछ दही को रिड़कते हैं, ऐसे रिड़क के उस वर्षे को निकाला। खून हाथी का बहा और हाथी पीछे को दौड़ता चला गया, अपनी फौज का नुकसान करता हुआ। भाई बचित्र सिंह की विजय हुई, वो जीत उन्होंने हासिल की। और पहाड़ियां दे विचों एक राजा सी, राजा केसरी चंद, उन्हें कसम खा लई कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जिउंदा जां मुर्दा फड़ के जावांगा। जे मैं काम ना कर सकिया, मैं कदी भी तुहानूं अपना मुंह नहीं विखावांगा। ते संगत जी, भाई बचित्र सिंह जी दे भरा भाई उदय सिंह जी, उन्हें महाराज नूं आख्या, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह हुण मैनूं आज्ञा दिओ। गुरु साहिब जी ने भाई बचित्र सिंह नूं आज्ञा दित्ती
ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਪਾ ਵਰਸ਼ਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਰਪੇ ਵਰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਰਪੇ ਵਰਸ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ किला फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है। पहला किला आनंदगढ़ साहिब, दूसरा किला लोहगढ़ साहिब, तीसरा किला फतेहगढ़ साहिब। ये 3 किले और 2 किले और हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उस सिख का जो उसने बहादुरी का प्रमाण दिया, उस सिख का शस्त्र करपा वर्षा वो भी तख्त साहिब के ऊपर सुशोभित है। उस वर्षे में 2 गोलियां लगी। पहाड़ी राजों ने पीछे से फौजों ने गोलियां चलाई, एक उस वर्षे के मुट्ठे में जहां से उन्होंने पकड़ा हुआ था वहां पे लगी है। आज भी इस गोली का निशान है, एक वर्षी के ऊपर लगी हुई है। तीसरा चौथा किला 4th नंबर पे किला जो है किला होलगढ़ साहिब। कभी भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, आयो होली को पूर्व सिखो आन बेनती की। होली का त्योहार नेड़े आया, सिखा ने आके बेनती की है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नो, गुरु गोबिंद जी कहो कैसे मनाए जे त्योहार, तुम्हारी आज्ञा पाए क्या रंगों को बनाए। जा कोई और रीत तुम्हें चलाए हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज होली का त्योहार आ गया, दसो ये रंगा नाल खेलिए कि तुसी कोई होर रीति अपनाउणी है। उस समय गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या कि सिखो रंगा नाल होली बहुत खेल रही, रंगा नाल होली खेलदे सी, एक दूए दे मूंह ते रंग मलने, किचड़ सुटना। गुरु साहब कहते नहीं, हुण ये होली नहीं खेलनी। सतगुरु फिर केड़ी होली खेलनी है। उस समय गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने अपने श्री कंठ तो अपनी पावन रसना तो यह वचन कीता, खग खंड बेहंडक खल दल खंडन अतरण मंडन वर भंडक पुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन ज्योतिय मंडन भान प्रभम सुख संतः करणं दुर्मत दरणं किल विख हरणं असरणं जय जय जग कारण सृष्टि उबारण मम प्रतपारण जय तेग अस कृपाल खंडो खड़ग तुपक तबकर तीर सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर। पीर तुम्ही सहती तुम्ही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै भवै सिंध भव पार। साडा खालसा हुण होली नहीं खेलेगा। सतगुरु जी फिर की करिए? खालसा होला महल्ला खेलेगा। होले तो भाव हल्ला करना, हमला करना। महल्ले तो भाव वो था जिथे हमला करके उथे काबज हो जाना। इस सतगुरां ने अखर शब्द दिते, होला महल्ला।
श्री अनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते पहली बार होला 1700 ईस्वी दे विच खालसे पंथ के प्रकट होने के बाद 1 साल बाद वहां पे होला मोहल्ला सतगुरु जी ने प्रारंभ किया। जब श्री अनंदपुर साहिब को सतगुरु जी छोड़ के जा रहे थे तो गुरु साहिब से वहां के सिखों ने और संगत ने विनती की, सतगुरु कि वापस कभी अनंदपुर साहिब आएंगे, अनंदपुर साहिब में कब आएंगे वापस। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बोलने लगे कि नहीं, शरीर करके हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब हमारा खालसा इस धरती पे होला महल्ला खेला खड़े करेगा, जिस दिन महल्ला गुरु की फौजें महल्ला खेला करेगी, उस दिन उस महल्ले की अगुवाई मैं आप करूंगा। सच जाने हो संगत जी, जदों निहंग सिंह फौजा महल्ला चढ़दियां ने, इस तरह प्रतीत हुंदा है कि सब तो अगे अगवाई गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह करते। बोले सो निहाल। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बख्शिश की है ते पंजवा किला तारागढ़ साहिब, इस किले के बाबत जिक्र होता है कि इस किले दे विच 500 ब्रह्म ज्ञानी रहा करता सी ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी रोजाना आप इस किले च जांदे, उन्हां 500 ब्रह्म ज्ञानियां नूं सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने हथी प्रशादा छकाउंदे ते फिर आप प्रशादा छकदे। ये 5 किले खालसे दे श्री अनंदपुर साहिब की धरती ते सुशोभित है। गुरुद्वारा भोरा साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब श्री अनंदपुर साहिब की धरती ते सुशोभित है ते तखत श्री केसगढ़ साहिब जिहदा आपां रात दे दीवान विच जिक्र करांगे, वो तखत जो खालसे का तीसरा तखत है। सबसे पहला तखत तखत श्री अकाल तखत साहिब जो अमृतसर में है। दूसरा तखत तखत श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो बिहार में है। तीसरा तखत तखत श्री केसगढ़ साहिब जो श्री अनंदपुर साहिब में है। चौथा तखत तखत श्री दमदमा साहिब जो साबो की तलवंडी बठिंडा में है। और 5वां तखत तखत श्री हजूर अबचल नगर नांदेड़, जिसको हम शॉर्ट में हजूर साहिब बोलते हैं, वो महाराष्ट्र में है। जे खालसे के 5 तखत है और खालसे का तीसरा तखत जहां से सिखों को पहचान मिली, जहां पर गुरु गोबिंद सिंह ने अपना वचन पूरा किया कि मैं सिखों को ऐसी पहचान दूंगा कि मेरा सिख लाखों में खड़ा हुआ भी पहचाना जाएगा। वो तखत तखत श्री केसगढ़ साहिब अनंदपुर साहिब में सुशोभित है। दिया गया समा जो है वो समाप्त है। आज का जो विषय मुख्य प्रोग्राम था 84 के शहीदों की याद में। संगत जी 84 का तल्लुकारा सिखां दे हिरदियां दे उत्ते एक नासूर है। ये जख्म कभी भरे नहीं जाणगे। जालमा ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं भी निशाना बनाया, अकाल तख्त साहिब जी नूं निशाना बनाया। केवल लड़ाई हक सच दी उन्हां सिखां नाल सी, पर उन्हां बेदोशियां दा की कसूर सी। छोटे छोटे बच्चों नूं 18 महीने के बच्चे नूं भी शहीद कर दिता जावा। एहो जे दर्दनाक वाक़ा जिहड़ा होया है पिछे जे सारियां दा दिन मनाया घारे दे शहीदां नूं याद कीता। सत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिठरा वाले, बाबा ठारा सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, जनरल सुबेग सिंह जी,
जिन्हां ने आजादी की खातर, वखरी होने की खातर जुल्म दे अगे सीस नहीं झुकाया, अपना बलिदान दे दिता। उन्हां अमर शहीदां दी याद विच अज सहज पाठ दे भोग पाए ने। बहुत खुशी हुंदी है। मैं पहली बार इस धरती ते आया, पर याद रखियो एक गल मैं जरूर कहांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब तो बड़ा कुछ भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब मानवता का धुरा है, धुरा। गुरु ग्रंथ साहिब के आगे कुछ भी नहीं है, उजाड़ ही उजाड़ है। मानवता अंधकार में चले जाएगी अगर गुरु ग्रंथ साहिब ना होते। अगर गुरु ग्रंथ साहिब ना होते तो संगत जी आज किसी ने भी धर्म का उपदेश नहीं देना था, किसी ने भी सच की गल नहीं सी करनी। आज संसार दे विच जेकर अमन है, जेकर शांति है, वो केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी दे करके है। और आप संगत का प्यार मेरे साथ, चाहे रिश्ते में मेरे बड़े भाई है एडवोकेट हरदेव सिंह, उस स्थान से आए हैं जिस स्थान पे खालसे की स्थापना हुई है। तखत श्री केसगढ़ साहिब जी के एडिशनल मैनेजर, वो भी आप संगत में सुशोभित है। संगत जी एक गल दास अपने वालों आप जी ਨੂੰ जरूर कहेगा कि जिस तरह मैं देखिए आप संगत ਨੂੰ कि गुरु ग्रंथ साहिब नाल जुड़े हुए, बाणी नाल जुड़े हुए हो, बाणे नाल जुड़े हुए हो, गुरु दे चरनां नाल प्रीत है। देखियो किते ये प्रीत घट ना जाए। गुरु अगे अरदास करया करो है, गुरु जी धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह रहमतां करनियां, बख्शिशां करनियां, ना विसरी ना विसारी, ना भुली ना भुलाई। सतगुरु हमेशा अपने चरनां नाल जोड़ के रखी। कल भाई मोहकम सिंह जी के जन्म स्थान ते जाण दा मौका मिलिया ते मैं वेख के बहुत हैरान होया। जो मेरे नाल सागर जी, नैनवाणी जी और कितने प्रदीप जी, 8-10 जने जो गए थे, इन्होंने दर्शन करवाए। मैं हैरान हो गया, इतनी गर्मी में बुरा हाल था हमारा। गुरुद्वारे में जाके नमस्कार की, मुझे बोलने लगे कि ज्ञानी जी आप रेस्ट कर लो 1 घंटा। मैंने बोला आप भी कर लो। कह रहे नहीं, हमने रेस्ट नहीं करनी, हमने सुखमनी साहिब जी का पाठ करना है। और खुद बैठ करके इन लोगों ने माइक के अंदर श्री सुखमनी साहिब जी का जाप किया, वाहेगुरु गुरु मंत्र का जाप किया। सतगुरु की बहुत इन पे अपार बख्शिश कृपा है। और मैं ज्ञानी गुरदेव सिंह जी इन्हां दा भी धन्नवाद करदा है। मेरे बहुत सत्कारयोग भाई हरपाल सिंह जी, उन्हां दा भी मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा है, जिन्हां ने दास नूं इह हुक्म कीता सी ज्ञानी जी कि जरूर श्री आनंदपुर साहिब जी का, केवल आनंदपुर साहिब का इतिहास संगतां नूं दसो कि संगतां भी उस स्थान ते दर्शन करन जाण जिस स्थान तो एक वखरी पहचान मिली, जिस स्थान तो एक जज्बा मिलिया, जिस स्थान तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मानवता दे अंदर एक वखरी रूह पैदा कर देते, उस स्थान पे भी आप संगत जरूर आके दर्शन करो। दास आप सारिया संगतां नूं उस स्थान ते नतमस्तक होने दे वास्ते सदा दिंदा है। जदों भी समा लगिया आप जरूर श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते आके दर्शन देण दी कृपालता करनी ते गुरु साहिब जी के पावन स्थानां दे दर्शन करके जाना। होइयां भुल्लां दी खिमा 84 दियां समूह शहीदां नूं दास
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,